Welcome back to Science class of 7. Children, we were studying the chapter number 11, that is transportation in plants and animals. And in our previous video, we had studied the process of excretion, what is excretion, and the excretion in animals and the waste product produced during the excretion. Okay, and I hope that everybody have read the chapter thoroughly and have understood the concept very well. So today we will proceed further, and today's topic is excretion or excretory system in humans. Okay, today we will study about the excretory system in human beings. Okay, urea is major waste product produced in our body. We have studied that three major waste products are produced during the process of excretion, that is urea, carbon dioxide and sweat. And the major waste product that is produced in our body is urea. Okay, the urea and other unwanted salts dissolve in the water in the body to form a yellowish waste called urine. जो यूरिया होता है ये other unwanted waste जो भी सॉल्ट है उनके साथ मिक्स होके एक येलोइश कलर का लिक्विड बनाता है, विच इज कॉल्ड एज यूरिन. ओके, द एक्सक्रीटरी सिस्टम कलेक्ट्स द लिक्विड वेस्ट ऑफ द बॉडी एंड हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ देम. और जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो क्या करता है, इन सारे वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके हमारे बॉडी से रिमूव करता है. So that is the main function of the excretory system, and if we will not remove this waste product, it is very poisonous for our body and we may die also. Okay, now the excretory system consists of the following organs in human beings. अगर हम human beings का excretory system देखें तो उसमें mainly 4 organs involved हैं. The first one is 2 kidneys, a pair of kidneys, then 2 ureters, a bladder and a urethra. तो 4 organs है, 2 kidneys, 2 ureters, a bladder and a urethra. As you can see in the figure, आप फिगर में देख सकते हैं कि every person or every human being has 2 kidneys. Normally 2 kidneys होता है, but कभी कभी हम जब हमारी किडनी खराब हो जाती है, we can live with 1 kidney also. Okay, now kidneys. What are kidneys? The kidneys are bean-shaped organs towards the back of our body, just above the waist. तो अगर आप किडनी को देख सकते हैं फिगर में, it is just like a bean. राजमा आपने देखा है, like it's the shape is like of राजमा, और ये हमारे बॉडी के बैक में होता है, just above the waist, just हमारे कमर के ऊपर at the back. ठीक? Now each kidney contains thousands of tiny filters called nephrons. अगर अब हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है ह्यूमन बींग्स का, तो हम आइए समझते हैं. सबसे पहले क्या होगा कि 4 ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा. ठीक, ये 4 ऑर्गन्स है. तो फर्स्ट वन क्या होता है, ईच किडनी कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ टाइनी फिल्टर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स. अगर हम किडनी को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें छोटे छोटे टाइनी फिल्टर्स होते हैं, जैसे चाय छन्नी होती है उसमें छेद होते हैं, वैसे ही हमारी किडनीज में भी छोटे छोटे टाइनी फिल्टर्स होते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं. व्हेन द ब्लड कंटेनिंग यूरिया एंड अदर सॉल्ट passes through nephrons in the kidneys, the nephrons filter the blood and remove urea and unwanted salt from it. तब क्या होता है, जो ब्लड हमारे किडनी से पास होता है जिसमें यूरिया रहता है, अनवांटेड सॉल्ट रहता है, अदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो उस नेफ्रॉन से क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, छन जाता है. देन द लिक्विड लेफ्ट इन द किडनीज इज अ येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन. और जब वो लिक्विड जो बचता है फिल्टर होके वो येलोइश कलर का होता है, लाइट येलो कलर का होता है, जिसे हम यूरिन कहते हैं, जिसे हिंदी में हम कहते हैं पेशाब. Yes, we go for toilet ना. Yes, which goes into the bladder through tubes. और फिर यही यूरिन किडनी से पास होके कहाँ जाता है, हमने पढ़ा था ब्लैडर में जाता है. ठीक, ब्लैडर में जाता है, कॉल्ड एज यूरेटर्स, जिसे हमने पढ़ा है 2 यूरेटर्स होते हैं. किडनीज जो होता है वो यूरेटर से ब्लैडर के थ्रू कनेक्टेड है, तो इसी किडनी से जो येलोइश लिक्विड यूरिन होता है वो ब्लैडर थक जाता है यूरेटर्स में.
Urine is stored in the bladder, which is passed out from the body through regular intervals through the opening at the end of a tube called urethra. और ये यूरिन जाके कहाँ इकट्ठा हो जाता है? हमारे ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, जिससे हम रेगुलर इंटरवल पे जब भी हमें टॉयलेट आती है, when we want to go washroom, we go and we urinate. ठीक? और कहाँ से निकलता है? Through an opening at the end of the tube. जहाँ ट्यूब का एंड होता है, वो जो ओपनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रा. ओके? So an adult human being normally passes 1 to 1.8 liters of urine per day. तो अगर हम देखेंगे एक नॉर्मल पर्सन डेली 1 लीटर से 1.8 लीटर तक यूरिनेट करता है या यूरिन पास करता है इन ए डे और 24 hours. Okay? And our urine is a yellowish liquid which consists of 2.5% of urea, 2.5% of other waste and 95% water. तो जो यूरिन होता है वो 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है एंड 2.5% अदर वेस्ट या सॉल्ट्स होते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. किडनी फेलियर. किडनी फेलियर मीन्स किडनी का फेल हो जाना. दैट मीन्स नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द किडनी. ओके, समटाइम्स अ पर्सन किडनी में स्टॉप ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी. कभी कभी क्या होता है कि हमारा या किसी भी पर्सन का किडनी काम करना बंद कर देता है, मे बी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी. कंप्लीट फेलियर ऑफ किडनी लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया टू मच इन द ब्लड ऑफ ए पर्सन. तो हम जानते हैं कि यूरिया इज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी एंड जिसे कि हमारा किडनी फिल्टर करता है. जब हमारा किडनी ही नहीं काम कर रहा है तो यूरिया का फिल्टर नहीं हो पाएगा. एंड वी नो दैट यूरिया इज ए वेरी टॉक्सिक और पॉइजनस सब्सटेंस एंड इफ इट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी, अगर ये हमारे बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा, इट इज वेरी पॉइजनस फॉर अस एंड वी मे डाई ऑल्सो. ओके, सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किडनी प्रॉपर फंक्शन करे, उसके लिए एक न्यू टेक्निक है दैट इज कॉल्ड डायलिसिस. डायलिसिस को हम आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हैं. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द डायलिसिस. द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड डायलिसिस. और डायलिसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, एक तरीका है या प्रक्रिया है जिसमें हम उस पेशेंट के ब्लड को फिल्टर करते हैं जिसकी किडनी ठीक से काम नहीं करती है, और उस ब्लड को फिल्टर करके उसमें से हम वेस्ट प्रोडक्ट जो कि यूरिया है और अदर सॉल्ट है उसको रिमूव करते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस. In dialysis, the blood of a person having kidney failure is filtered regularly by using a kidney machine to remove urea and other salts from it. इसमें हम क्या करते हैं? किडनी मशीन, जिसे कि हम डायलिसिस मशीन का यूज करते हैं ताकि उसमें जो भी ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है और एक्सेस सॉल्ट है उसको हम रिमूव कर सके बाय रेगुलर इंटरवल. और ये रेगुलर इंटरवल पे होता रहता है. ठीक है. Since a kidney machine can do the work of damaged kidneys, therefore it is called as artificial kidney. तो जो ये artificial kidney का काम करता है, मतलब ये जो किडनीज डैमेज हो गई है तो उनकी जगह ये काम करता है, इसलिए हम इसे artificial kidneys भी कह सकते हैं. Thus, artificial kidney is a machine to remove urea and other waste products from the blood of a person by filtering it. तो हम artificial kidney या डायलिसिस मशीन को कह सकते हैं कि ये एक तरह से किडनी का काम करता है, नॉर्मल किडनी का काम करता है, जो हमारे बॉडी से हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया है और सॉल्ट को फिल्टर करता है और उनको रिमूव करता है. सो दिस वाज अबाउट द एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एक्सक्रिएशन इन अदर एनिमल्स. दूसरे एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स, एक्वेटिक एनिमल्स, रेप्टाइल्स, उनमें कैसे एक्सक्रीशन होता है. ठीक. एक्सक्रीशन इन अदर एनिमल्स. द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज यूरिया. हमें पता है हमारे बॉडी में जो मेजर इंपॉर्टेंट वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज यूरिया. अदर एनिमल्स ऑल्सो एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम देयर बॉडी. अदर एनिमल्स लाइक फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, वो भी क्या करते हैं? अपने बॉडी से
एक्सक्रीट करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स एक्सक्रीट सेल वेस्ट इन गैसियस फॉर्म। जो एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस वो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं अपने बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ ए गैस कॉल्ड अमोनिया, ठीक, which is directly dissolved in water. Then the land animals such as birds, lizards and snakes excrete a white colored waste called uric acid which is in semi solid form. तो अगर आपने देखा होगा जो बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं और स्नेक्स होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड जो कि व्हाइट कलर्ड का होता है एंड इट इज इन सेमी सॉलिड फॉर्म। ना ही लिक्विड होता ना ही सॉलिड होता, सेमी सॉलिड होता, थोड़ा लिक्विड थोड़ा सॉलिड फॉर्म में होता है। सो दिस वाज अबाउट द एक्सक्रिएशन इन अदर एनिमल्स अदर देन ह्यूमन बींग्स। So that was all for today and I hope that you all have understood it very well. Okay, so children, in our upcoming video I will be discussing about the transportation in plants. We have covered the topic transportation in animals and next we will be going through the transportation in plants. So go through the chapter, read the dot points and underline the important terms and study it. So your today's homework is question number 1, what is the percentage composition of urine? Question number 2, what job is done by the kidneys? Question number 3, what is dialysis? Question number 4, how can a person having kidney failure survive? Question number 5, where are kidneys located in our body? And question number 6, what type of patients are put on dialysis machine? So children, these 6 question answers you have to write in your homework copy in a very neat and clean handwriting. And apart from that, not only write, you have to learn it also. Go through the book, read the important terms of the chapter. Okay, that's all for today. Thank you class.